ہزار داستان۔ کمرے میں مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ باہر چاند آسمان کی پیشانی پر کسی جھومر کی طرح چہک رہا تھا۔ چاندنی پھیلی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ یہ ایک پررو پہلی رات تھی۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ آرزو کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹی تھی، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے فضاؤں میں اڑ رہی ہو۔ پہاڑ، بادل، بہتے چشمے، پھول، تتلیاں، عجب رنگ، عجب فضا تھی۔ جانے وہ کون سی وادی تھی، جانے وہ کہاں تھی۔ انگور کی بیلیں تھیں، ان سے ٹپکتا رس تھا۔ میٹھے سیب درختوں پہ جھول رہے تھے۔ ایک بل کھاتی پگ ڈنڈی دور ایک جھونپڑی تک چلی گئی تھی۔ لمحہ لمحہ بدلتے مناظر تھے اور ان بدلتے مناظر میں محو تھی وہ۔ پھول پر تتلی بیٹھی تھی اور بھنورے منڈلا رہے تھے۔ کوئل کی آواز کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ سفید کبوتر اڑ رہے تھے، قلا بازیاں کھا رہے تھے۔ کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ کہیں دور کوئی چرواہا پتھر پر بیٹھا بانسری کی تان اڑا رہا تھا۔ عجیب فضا تھی۔ رنگ، موسم، خوشبو، ٹھنڈی ہوا، گنگناتا سناٹا، اندھیرا، اجالا۔ آرزو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں ہے۔ ایک سحر سا اس پر طاری تھا۔ سارا وجود جھوم رہا تھا، جیسے اس کے کان میں کوئی میٹھی سرگوشی کر رہا تھا۔ کوئی اس کا نام بڑے مدھم سروں سے لے رہا تھا۔ آرزو، آرزو، وہ بے قرار ہو رہی تھی۔ کوئی اس کا سکون لوٹ رہا تھا اور وہ دور پرسکون تھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خمار بھی تھا، نشہ چڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ کوئی اندھیرے میں بول رہا تھا، اچھا کیا میری آرزو، تم نے بہت اچھا کیا۔ میں نے کیا کیا؟ تم نے شادی سے انکار کر کے بہت اچھا کیا۔ وہ تو کرنا ہی تھا۔ میں اب تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ تم بہت اچھی ہو آرزو، میری برہا پرمان کا انتخاب۔ بالآخر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا۔ کوئی بول رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ وہ بول رہی تھی لیکن لب خاموش تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے دماغ میں بول رہا ہو، یا وہ خود سے سوال کرتی ہو، خود سے جواب دیتی ہو۔ اب مجھے تمہارا انتظار ہے، سوال ہو رہا تھا۔ رنتارو سے اب برہا کو، اس کی آرزو کو کوئی نہیں چھین سکتا۔ اگر کسی نے چھیننے کی کوشش کی تو اسے تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، جواب مل رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، محصور کن خوشبو تھی، اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے بیگانہ ہوتی جا رہی تھی۔ مہرو پوری رات جاگتی رہی تھی۔ اسے کسی کروٹ چین نہ تھا۔ آنکھوں میں جیسے انگارے بھرے ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو جلن ایک دم بڑھ جاتی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کانٹوں پر لیٹی ہو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو یہ روح فرسا خبر کیسے بتائے۔ وہ اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ وہ آپ گینا سا، ذرا سی ٹھیس اسے توڑ سکتی تھی۔ وہ موم تھا، ذرا سی آنچ اسے پگھلا سکتی تھی۔ وہ اسے کیسے بتائے کہ بھائی اب آرزو تمہاری نہیں ہے، اس نے تمہاری بننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی نہیں بتائی ہے۔ جانے ایک موہوم سی امید کیوں تھی، ایک آس تھی کہ شاید رات کی سیاہی جب اترے گی، دن کا اجالا پھیلے گا تو آرزو کا فون آئے گا اور وہ قہقہا لگا کر کہے گی، اوہ میری مہرو، ارے بے وقوف، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ دن کا اجالا بھی پھیل گیا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کوئی گھنٹی بجی، نہ ہی آواز آئی، نہ آرزو نے فون کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے سوچا کہ ایک مرتبہ آرزو سے اور بات کرے۔ وہ آج کالج نہیں گئی تھی۔ مہرو کو امید تھی کہ وہ بھی نہیں گئی ہوگی، کیونکہ اس کی طبیعت کل ٹھیک نہیں تھی۔ اگر گئی ہوگی تو پھر وہ اس سے دوپہر کو بات کر لے گی۔ ایک خیال اس کے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ براہ راست کمال رائے سے کیوں نہ بات کرے، لیکن کمال رائے سے بات کرنا اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ یہ بات ماموں رشید کریں یا پھر اس کا بھائی کرے۔ ٹیلی فون گود میں رکھ کر اس نے آرزو کے فون کا نمبر ڈائل کیا اور ایک گہرا سانس لے کر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ مسلسل بیل ہونے کے باوجود کسی نے فون نہ اٹھایا تو مہرو نے سوچا کمرے میں کوئی نہیں، کہیں وہ کالج تو نہیں چلی گئی۔ پھر اس نے گھر کا دوسرا نمبر ڈائل کیا تاکہ ستارہ سے بات کر کے صحیح صورتحال جان لے۔ دوسری گھنٹی پر کسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو،
वो सितारा थी। मैं मेहरू बोल रही हूँ। मेहरूनिसा। बीबी फ़ोन नहीं उठा रही, क्या कॉलेज गई हैं? मेहरू ने पूछा। नहीं, बीबी तो घर पर हैं, वो इस वक्त मालिक के कमरे में हैं, सितारा ने जवाब दिया। सितारा। ज़रा बुला दोगी? बीबी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आप कुछ देर के बाद फ़ोन कर लें। मालिक ने कहा था कोई फ़ोन आए तो मना कर देना। ये बात मैं आपको बता रही हूँ। इसका मतलब है वो आरज़ू से कोई ख़ास बात कर रहे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ? बस आपको इतना बता सकती हूँ कि दरवाज़ा बंद है और किसी को अंदर जाने से मना कर दिया गया है। सितारा ने सारी सूरत हाल बताई। अच्छा सितारा, ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया, मैं फिर बात कर लूँगी। वो कमरे से निकल आई। अच्छा, वो कमरे से निकल आए तो उसे इतना ज़रूर बता देना कि मैंने फ़ोन किया था। हाँ बीबी, बता दूँगी, ज़रूर बताऊँगी, सितारा ने बड़े यकीन से कहा। अच्छा, खुदा हाफिज़। ये कहकर मेहरू ने रिसीवर रख दिया और गहरा सांस लेकर दरवाजे की सिमत देखने लगी। कमरे में गहरा सन्नाटा तारी था। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। कमाल राय की समझ में नहीं आ रहा था वो किस तरह बात शुरू करे। आरज़ू इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि इसके बाबा ने उसे अपने कमरे में क्यों बुलाया है, वो क्या पूछना चाहते हैं। वो सोच रही थी कि बाबा के सवाल का क्या जवाब देगी, किस तरह उन्हें बताएगी। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। कमरे में गहरा सन्नाटा तारी था। आरज़ू। बिला आखिर कमाल राय ने सन्नाटे की झील में पहला पत्थर फेंका। जी बाबा। आरज़ू जो सोचों के समंदर में गुम थी, बाप की आवाज़ सुनकर एकदम चौंकी। उसने अपनी भारी पलकें उठाई और खूबसूरत आंखों से कमाल राय को देखा। आरज़ू, अब तुम्हारे निकाह में सिर्फ एक दिन बचा है। परसों तुम्हारा निकाह है। हस्पताल में तुमने मुझसे कुछ कहा था, वो क्या था बेटी? बाबा, जो बात मैंने आपसे कही थी वो बात मैंने कल मेहरू से भी कह दी है। आरज़ू ने इंकशाफ किया। ओह! कमाल राय के दिल पर एक खूंसा सा लगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? बाबा, मैं जानती हूँ मेरी बात से आपको दुख पहुँचेगा, आप मुझे माफ़ कर दें बाबा। बिला आखिर इनकार की वजह भी होगी। ये रिश्ता तुमने खुशी से कबूल किया था। तुमने कहा था कि रामेश ख्याल को तन्हा न छोड़े। बेटा, जब मैंने उसे अपने साथ ले लिया, उसका साथ देने का पक्का इरादा कर लिया, तो तुम साथ छोड़ रही हो। बाबा, मैं क्या करूं? आरज़ू ने बेबसी से कहा। मुझे बताओ, आखिर मामला क्या है? खुलकर बात करो। जो दिल में है उसे ज़ुबान पर ले आओ। बाबा, मैं मजबूर हूँ। उसने अपने हाथ मले। किस बात से मजबूर हो? इनकार की वजह बताने से या रामेश ख्याल से शादी करने से? दोनों से। आरज़ू, देखो, तुम मुझसे कुछ मत छुपाओ। बाबा। बाबा, नहीं बाबा। हाँ बेटा, बोलो, हिम्मत करो, डरो मत। कमाल राय ने उसकी हिम्मत बंधाई। बाबा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। कौन है वो? कमाल राय। उसने आरज़ू का एक हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। मैं उसे देख लूँगा, तुम उसका नाम बताओ। छोड़े बाबा, आप मुझे बहुत अजीज़ हैं। मुझे रामेश ख्याल भी बहुत अजीज़ है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि अगर तुमने रामेश ख्याल से शादी की तो हम दोनों को कुछ हो जाएगा, हमारी जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी? आरज़ू, यही बात है ना? बाबा, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझसे कुछ मत पूछिए। आरज़ू, तुम डर रही हो, खौफज़दा हो। तुम कभी इतनी बुज़दिल तो न थी बेटा। तुम तो मुझे हौसला देती थी। देखो आरज़ू, डरो नहीं, तुम्हारा बाप शीशे का नहीं है। अगर तुम्हें किसी ने धमकी दी है तो मुझे साफ साफ बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप किस को मारेंगे बाबा? वो कोई नहीं है। वो कोई होता तो आप उसको मारते। आरज़ू ने बात बड़ी शाइस्तगी से कही। कमाल राय ने चौंक कर आरज़ू को देखा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी बेटी की जहनी रो बहक गई हो। वो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रही थी। बिल्ली वाला बाबा अपने खास अंदाज में दीवार से टेक लगाए बैठा था। वो सामने की तरफ किसी अनजानी चीज को देख रहा था। बिल्ली का बच्चा बैग पर उछल कूद मचाए हुए था। इसके उछलने से गले में पड़े घुंघरू बार बार बज रहे थे। बिल्ली के बच्चे के गले में बंधी हुई डोरी का एक सिरा बैग के फीते से बंधा था। कमाल राय अपनी गाड़ी में बैठा इसके उठने का इंतजार कर रहा था। वो 2 मरतबा उसका ताक़ुब कर चुका था।
دونوں مرتبہ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، نہ رک کر اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کی تھی۔ کمال رائے اس بابا سے مایوس ہو گیا تھا، بس آج یہ سوچ کر چلا آیا تھا کہ اگر آج بھی بابا نے توجہ نہ دی تو وہ پھر اس کے تعاقب میں یہاں نہیں آئے گا۔ اگرچہ قبرستان میں ملنے والے بابا نے کسی وقت کی حد مقرر نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا اس وقت تک اس کا تعاقب کرنا جب تک وہ خود مخاطب نہ کرے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیا ساری عمر کو اگر وہ اسے مخاطب نہ کرے تو وہ اس کے تعاقب میں جاتا رہے؟ پھر وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، اگرچہ ایک دور دراز علاقہ تھا، لیکن اگر کسی نے اسے اس طرح فقیر کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ مغرب سے کچھ دیر پہلے وہ حسب معمول اپنا بیگ کاندھے پر ڈال کر اور بیگ میں بلی کے بچے کو بٹھا کر اپنے راستے پر چل پڑا۔ کمال رائے بھی اپنی گاڑی بند کر کے چند قدم کا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ بلی والا بابا پل پر پہنچ گیا تو اچانک اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کمال رائے 5-7 قدم پیچھے تھا۔ اس نے بابا نے مڑ کر دیکھا اور پھر چلتے چلتے رک گیا۔ وہ گردن موڑے بڑے غور سے کمال رائے کو دیکھ رہا تھا۔ کمال رائے نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھتے اور کھڑے ہو کر اسے گھورتے گیا تھا۔ وہ رکا نہیں۔ کمال رائے جب بالکل اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، 3 دن ہو گئے تجھے میرے پیچھے آتے، کیا چاہتا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ کمال رائے فوراً ہی حرف مدہ زبان پر لے آیا، ہم سے کوئی بات نہ کر، اپنی بیٹی کا نکاح کر دے۔ اگر تو نے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کیا تو یاد رکھ وہ اسے برباد کر دے گا، بہت خبیث ہے وہ، بلی والے بابا نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ لیکن بابا، کمال رائے کہتا رکا، اس نے شادی سے انکار دیا ہے، یہی نا؟ ہاں بابا، وہ بچی ہے، معصوم ہے، اس نے اسے ورغلا لیا ہے، تو اس کی فکر نہ کر، نکاح کر دے۔ یہ نکاح وقت مقرر پر ہو جانا چاہیے، تو اس کی مرضی کی فکر نہ کر، سمجھ گیا میری بات؟ بابا جانے کے لیے مڑ گیا۔ سمجھ گیا بابا، اچھی طرح سمجھ گیا۔ سمجھ گیا تو پھر جا، ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں، دیکھ لیں گے اسے۔ یہ کہہ کر بابا اپنی راہ پر ہو لیا۔ کمال رائے اپنی جگہ کھڑا بلی والے بابا کو جاتا دیکھتا رہا، مگر اس نے پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ پل کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ جب بلی والے بابا کا سر بھی غائب ہو گیا تو کمال رائے واپسی کے لیے مڑا۔ بلی والے بابا سے بات کر کے بڑی حد تک اس کی ذہنی الجھن ختم ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بابا کو کمال رائے کو کچھ بھی بتانا نہیں پڑا تھا، ساری بات خود اس نے واضح طور پر خود ہی بتا دی تھی۔ فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے بابا بڑی اونچی چیز نکلا تھا، اسے کیا نہیں معلوم تھا؟ وہ جانتا تھا کہ آرزو کا نکاح ہونے والا ہے، اسے یہ بھی خبر تھی کہ آرزو کا نکاح سے انکاری ہے، اسے اس انکار کی وجہ بھی معلوم تھی جو اسے صاف نہیں کہی تھی، لیکن کمال رائے نے اس کی بات سے ایک نتیجہ اخذ کر لیا تھا کہ نکاح سے انکار کی وجہ کوئی بہت اہم، بہت خاص اور پراسرار نوعیت کی ہے۔ بابا نے صاف لفظوں میں نکاح کرنے کی تاکید کی تھی، چاہے انکار آرزو کرے یا اقرار۔ جب کمال رائے اپنی گاڑی میں بیٹھا تو خاصا مطمئن تھا، اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ آرزو کا نکاح وقت مقررہ پر پرواہ کر رہے گا۔ کمال رائے گاڑی سے اترا تو اسے اپنے سامنے ستارہ کا چہرہ نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مخاطب ہوتے کمال رائے خود بولا، کیا ہوا ستارہ؟ مالک، وہ مہرو بی بی کے ماموں آئے ہوئے ہیں، اس نے بتایا۔ اچھا، اور کون ہے ان کے ساتھ؟ کمال رائے نے پوچھا۔ جی وہ اکیلے ہیں۔ کتنی دیر ہوئی ہے آئے ہوئے؟ کافی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے کہا تھا آپ سے مل کر ہی جائیں گے۔ اچھا چلو چائے پانی لاؤ۔ میں چائے کا پوچھ چکی ہوں، پر جی انہوں نے سختی سے منع کر دیا ہے، ستارہ نے کہا۔ آرزو کہاں ہے؟ کمال رائے نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ آرزو ان سے ملنے نہیں گئی؟ نہیں جی، ستارہ بولی۔ کیا تم نے اسے نہیں بتایا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ ہاں جی، ان کے آتے ہی بتا دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم چائے کا انتظام کرو، کچھ دیر کے بعد لے کر آ جانا، میں ڈرائنگ روم میں جا رہا ہوں۔ کمال رائے نے ستارہ کو ہدایات کی۔ ٹھیک ہے، ستارہ نے کہا۔ کیا بی بی کو بتا دوں کہ آپ آ گئے ہیں؟ ہاں بتا دینا، اور ان سے کہنا وہ خود چائے لے کر آئیں۔ جی ٹھیک ہے، میں بی بی کو بتا دوں گی۔ یہ کہہ کر ستارہ کچن کی طرف چلی گئی اور کمال رائے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔
मामू रशीद सामने ही सोफे पर बैठे थे और उनकी नजरें दरवाजे पर जमी हुई थी। कमाल राय को ड्राइंग रूम में दाखिल होता देखकर वो एकदम खड़े हो गए। कमाल राय ने आगे बढ़कर उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, उनकी खैरियत पूछी और फिर उन्हें सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए बोले, माफ़ कीजिएगा, आपको इंतज़ार की जहमत उठानी पड़ी। नहीं, कोई बात नहीं, आज आप सारी रात ना आते तो मैं इसी तरह बैठा रहता। मामू रशीद ने कुछ इस अंदाज में ये बात कही कि कमाल राय के दिल पर एक चोट सी लगी। आखिर ऐसी क्या बात हुई? कमाल राय ने अनजान बनकर पूछा। हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि क्या बात हुई है और मामू रशीद उसके दर पर क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते? मामू रशीद ने नरम लहजे में पूछा। क्या आप आरजू के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं? कमाल राय ने दरियाफ्त किया। जी बिल्कुल, सुना है आपकी बेटी ने निकाह से इनकार कर दिया है। मामू रशीद ने साफ लफ्ज़ों में बात की। जी, कमाल राय ने भी मुख्तसर जवाब दिया। रामेश ख्याल इस इनकार से बहुत मुतासिर हुआ है। मुझे डर है वो कुछ कर ना बैठे। मामू रशीद परेशान होकर बोले, राय साहब, आखिर हमसे क्या खता हुई, कुछ बताएंगे? ये मेरी बेटी का फैसला है, मेरा नहीं। मैं इससे इस मौजू पर बात कर चुका हूँ, लेकिन वजह बताने से वो कासिर है। कमाल राय ने बड़े नपे तुले अंदाज में कहा। मैं आपके इस जुमले का मतलब समझा नहीं। समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आया रशीद साहब। आप बहरहाल परेशान मत हो। रामेश ख्याल को भी तसल्ली दे दीजिए। मैंने आपको जो जुबान दी है मैं उस पर कायम हूँ। आप कल शाम को रामेश के साथ आ जाइए। मैं आरजू का निकाह उसके साथ कर दूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। कमाल राय ने ये बात पुरयकीन अंदाज में कही। मामू रशीद ये सुनकर खिल उठे और उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने कमाल राय को हाथ खींचकर उठाया और अपने गले से लगा लिया। उन्हें तवक्को न थी कि ये मामला जो उनके भांजे के लिए मौत और जिंदगी का मसला बन गया था इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। कमाल राय ने तो उनके नज़दीक कमाल ही कर दिया था। राय साहब, आप बहुत ग्रेट आदमी हैं। यूँ समझे कि आपने मेरे भांजे की ज़िंदगी बचा ली। वो बड़ा ही जज्बाती लड़का है, मुझे उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। वो आपसे बात करने के लिए खुद आ रहा था, मैंने उसे बड़ी मुश्किल से रोका। मामू रशीद ने कमाल राय को अलग करके बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। अभी वो दोनों हाथ ही मिला रहे थे कि आरजू सितारा के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने बड़ी हैरत से दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा। उसकी समझ में नहीं आया कि वो दोनों इतनी देर बाद एक दूसरे से हाथ क्यों मिला रहे हैं। ओह आरजू बेटा। मामू रशीद की उस पर नज़र पड़ी तो वो आगे बढ़े। आरजू ने उन्हें बड़े अदब से सलाम किया, जिसका मामू रशीद ने बड़े तपाक से जवाब दिया और फिर बड़ी शफकत से इसके सर पर हाथ फेरा और ढेरों दुआएं दी। निकाह का वक्त सर पर था। निकाह ख्वाह आ चुका था। आरजू निकाह का जोड़ा पहने बैठी थी। निकाह का फॉर्म पुर किया जा रहा था। यह निकाह इंतहाई सादगी और मुकम्मल राजदारी के साथ हो रहा था। इस निकाह में मामू रशीद की फैमिली के अलावा बाहर का कोई आदमी शरीक न था। इधर से बस कमाल राय की माँ नफीसा बेगम शरीक हुई थी। कमाल राय नफीसा बेगम को आज सुबह ही रोशन गोट से लेकर आया था। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था, बस इतना कहा था, माँ तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, कराची चलो। तब नफीसा बेगम ने एक लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला। वो खामोशी से इसके साथ पजीरों में बैठ गई। इसका बेटा उसे लेने आया था, उसे उसकी ज़रूरत थी। बस नफीसा बेगम के लिए इतना ही बहुत था कि इसके इकलौते बेटे को उसकी ज़रूरत है। उससे कोई सवाल कैसे करती। वो ज़बान बंद किए इसके साथ चली आई। अलबत्ता इसके जहन में खिचड़ी पक रही थी, तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। हाँ, उसे ये यकीन हो गया था कि ज़रूर कोई ख़ास बात हुई है। ख़ास बात यकीनन थी और ये बात खां के कदमों बैठ कर बताई। माँ, मैं आज शाम आरजू का निकाह कर रहा हूँ। ये सुनकर नफीसा बेगम को बैक वक्त खुशी और दुख के एहसास ने आ घेरा। दुख इस बात का कि कमाल राय ने इससे इस मामले में कोई मशवरा नहीं लिया, उसे पहले से क्यों नहीं बताया कि उसे अल्लाह ने ये दिन दिखाया था। उसने अपने दुख को खुशी की चादर में लपेट लिया और अपने बेटे का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर कर बोली, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मगर तूने ये बात रोशन गोट में क्यों नहीं बताई। मैं जाने क्या क्या सोचती रही। माँ, असल बात यह है
मैं ये निकाह बहुत इमरजेंसी में कर रहा हूँ। इस मौके पर रिश्तेदारों को इकट्ठा करना मुमकिन नहीं था, इसलिए तुम्हें खामोशी से रोशन गोट से ले आया हूँ। माँ, लड़का बाहर जा रहा है। मैं आरजू की रुखसती 2-3 साल बाद करूँगा। लड़का बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा फौरी तौर पर निकाह कर दूं ताकि एक अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। माँ, मैंने खसूसी तौर पर लड़के को बुलवाया है, सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम लड़के को देखोगी तो तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना न रहेगा। लड़का बहुत नेक और खूबसूरत है। कमाल राय ने अपनी माँ को मुतमईन करने के लिए जो उसकी जुबान पर आया कह दिया। कमाल राय ने रामेश ख्याल को फोन करके बुलवा लिया ताकि अपनी माँ को दिखा सके। नफीसा बेगम ने रामेश ख्याल को देखा तो इसकी बाँछें खिल गईं। वो खुशी से झूम उठी। उसने चटपट रामेश ख्याल की कई बलाएं जो थोड़ा बहुत दूसरे मशवरे में शरीक न करने का हुआ था वो भी जाता रहा। इसके बेटे ने उसकी पोती के लिए बहुत ही हसीन दूल्हा ढूंढा था। माँ को खुश देखकर उसका दिल भी खुश हो गया, लेकिन अभी एक मरहला और बाकी था, और ये एक मुश्किल मरहला था। मामू रशीद की आमद ने आरजू को ज़हनी उलझन का शिकार कर दिया था। उसे अंदाज़ा हो गया था कि काम मुलतवी नहीं हुआ है, वक्त मुकर्ररा पर होना करार पाया है। तब से वो सख्त परेशान थी। रात भर उसे डरावने ख्वाब दिखाई देते रहे। सारी रात उसने सख्त बेचैनी में गुजारी। सुबह उठते ही उसे इत्तला मिली कि दादी आ गई हैं। वो अपने कमरे से नहीं निकली। वो दरवाज़ा बंद किए नजरें जमाए अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और कमाल राय कमरे में दाखिल हुआ। वो अकेला था। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता आरजू की तरफ बढ़ा। बाप को कमरे में दाखिल होता देखकर वो संभल कर बैठ गई। बोली कुछ नहीं, खामोशी से उसे देखती रही। बाप के पास बोलने को क्या बाकी था? वो वादे तौर पर इससे निकाह से इनकार कर चुकी थी। कमाल राय धीरे से आरजू के बेड पर बैठ गया। उसे देखकर खुशदिली से मुस्कुराया। कैसी हो बेटा? आरजू ने शिकवा भरी नज़रों से बाप को देखा और बड़ी शाइस्तगी से बोली, बाबा ठीक हूँ। आज शाम को तुम्हारा निकाह है। तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। तुम्हारी दादी रामेश ख्याल से मिलकर बहुत खुश हुई हैं। मेरा ख्याल है अब तुम्हें इस निकाह के लिए खुशदिली से राज़ी हो जाना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है। कमाल राय ने उसे सूरत हाल से आगाह किया। बाबा, मैं ये निकाह नहीं करूँगी। आप नहीं जानते इस निकाह के बाद कैसी तबाही आएगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर ये निकाह ना हुआ तो फिर जो तबाही आएगी इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। कमाल राय ने उसे ढके छुपे लफ्ज़ों में धमकी दी। चाहे कुछ हो, मैं ये निकाह हरगिज़ नहीं करूँगी। आरजू का लहजा अचानक तब्दील हो गया। उसका लहजा तब्दील होते ही कमाल राय ने अपना सीधा हाथ पीछे की तरफ घुमाया और बेड पर रखे इस रिवाल्वर को थाम लिया जिसे वो अपने साथ लाया था। फिर इसने वो रिवाल्वर एक झटके से आरजू के सामने किया और उसे घूर कर देखने लगा। नहीं नहीं बाबा, आरजू तो खौफजदा होकर बोली। ये लो। कमाल राय ने बड़े इत्मीनान से ये उसकी तरफ रिवाल्वर बढ़ाया। इसे थाम लो। नहीं बाबा। आरजू ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए। नहीं कैसे? कमाल राय ने उसका हाथ पकड़ कर आगे किया और फिर जबरदस्ती रिवाल्वर उसके हाथ में थमा कर बोला, चलाओ गोली। अपने बाबा को ख़त्म कर दो, फिर इत्मीनान से जो चाहे करना। कमाल राय इतना कहकर उसका चेहरा देखने लगा। आरजू की आंखें झुकी थीं और हाथ कांप रहे थे। वह चंद लम्हे इसके कांपते हाथों को देखता रहा, फिर बोला, बेटा ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। मैंने उन्हें ज़बान दी है। मैं अपनी ज़बान से नहीं फिर सकता। इस तरह निकाह से इनकार नहीं कर सकता बेटा। ये कोई शरीफाना अमल नहीं है। मैं बहरहाल तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता। मैं खुद मजबूर हो जाता हूँ, मंदिर से हट जाता हूँ। रिवाल्वर उठाओ और मुझे मंदिर से हटा दो। नहीं बाबा, ये काम तो मैं ख्वाब में भी नहीं कर सकती। आरजू लड़ती आवाज़ में बोली। फिर अपने बाप पर भरोसा करो। मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। तुम किसी चीज़ से, किसी बात से मत डरो। सारे खौफ मेरे लिए छोड़ दो। कमाल राय ने आरजू का हाथ पकड़ लिया। कमाल पकड़ते ही आरजू ने रिवाल्वर छोड़ दिया और आगे बढ़कर अपने बाप से लिपट गई। इसके कंधे पर सर रखकर आंसू बहाती रही। कुछ देर के बाद जब आंसुओं में थोड़ी कमी वाक़ई हुई तो आरजू ने सिसकते हुए कहा, ठीक है बाबा, फिर जैसी आपकी मर्जी। ये हुई ना बात। कमाल राय ने इसके सर को चूमा और खुश होकर कमरे से निकल गया। निकाह का वक्त सर पर था। निकाह ख्वां आ चुका था। आरजू निकाह का जोड़ा पहने बैठी थी। निकाह का फार्म पूरा किया जा रहा था। बंगले पर
खामोशी छाई हुई थी। अजीब सा समा था, लगता था घर में निकाह न हो, कोई मर्ग हो गई हो। मेहरू आरजू के पास बैठी थी। वो अपने तौर पर बातें किए जा रही थी, जबकि आरजू अपने होंठ सिए बैठी थी। आरजू की आंखों में खौफ था। वो किसी गैर मरई नुक्ते को तकते जा रही थी। कभी गहरा और ठंडा सांस लेकर मेहरू को देखती, कभी कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाती, जैसे उसे किसी का इंतजार हो, किसी की आवाज मुतवक्का हो। कोई और तो न आया, अलबत्ता कमाल राय अपने ड्राइवर लाल मोहम्मद और घर के मुलाजिम दिलदार के साथ जरूर आ गया। आरजू ने सिसकी भरी आवाज में कबूल है कहा। इजाब व कबूल के बाद निकाह ख्वाह ने निकाह पढ़ाया। मुबारक सलामत का हल्का सा शोर उठा। एक दूसरे को गले लगाया गया, छुआरे खिलाए गए। मामू रशीद ने इत्मीनान का सांस लिया। रामेश ख्याल की खुशी काबिले दीद थी। मेहरू ने आरजू को गले लगाकर भींच लिया। नफीसा बेगम चटपट बुलाएं लेने लगी और यूं ये निकाह की सादा सी तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। दुल्हा अपने लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर आंखों में हसीन ख्वाब सजाए अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आरजू को नींद नहीं आ रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। आरजू आंखें खोले दीवार पर लगी समंदर की बड़ी सी पेंटिंग को घूरे जा रही थी। नजरें कहीं थीं तो दिमाग कहीं और था, और वो खुद कहीं और। आरजू ने रामेश ख्याल को कबूल कर लिया था, लेकिन ये कोई नई बात ना थी। रामेश ख्याल तो जाने कब से इसके दिल में बसा हुआ था। इसके दिल ने बहुत पहले उसे कबूल कर लिया था। आज उसने दुनिया वालों के सामने अपनी ज़बान से उसे अपना कह दिया था। अंदर से चाहने के बावजूद उसे अपना बनाते हुए दिल कांपता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रामेश का ख्याल दिल से एकदम निकल जाता और वो किसी और को अपने वजूद से करीब तर पाती। इसका वजूद जैसे दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। रामेश ख्याल इसके दिल में मगन था, लेकिन इसके वजूद पर कोई और छाया हुआ था। एक अनजाना सा खौफ लरस कर वो निकाह से इनकार कर रही थी। कमाल राय ने मौत की धमकी देकर आरजू को इस निकाह पर राजी किया था। इस दुनिया में उसे अपने बाप से ज्यादा अजीज कोई भी शय नहीं थी। वो अपने बाप को परेशान नहीं देख सकती थी। इसके बाप ने ज़बान दी थी, अब वो अपने बाप की पसपाई नहीं देख सकती थी। किसी के सामने इसके बाप का सर झुके ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने आंखें बंद करके रामेश ख्याल को कबूल कर लिया था, और अब वो आंखें खोले सोच रही थी कि एक अनजाना सा खौफ इसका दिल कांप रहा था। वसवसे उठ रहे थे और इसके लबों पर रामेश ख्याल की सलामती की दुआएं थीं। इसी वक्त वो पर्दे के पीछे से फिसल कर कालीन पर आया। कमरे में एक महसूर कुन खुशबू फैल गई। इससे पहले कि आरजू सर घुमाकर इधर उधर देखती, एक स्याह वजूद उस पर छा गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उस पर किसी ने काली चादर डाल दी हो। फिर एकदम इसके कान में सरगोशी गूंजी। ये सरगोशी सांप की फनकार से मुशाबा थी। आखिर तुमने मनमानी कर ली। मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हें अच्छी तरह बता दिया था कि अगर तुम्हारे मेरे दरमियान कोई आया तो उसे बर्बाद कर दूंगा। कोई उसके दिमाग में बोला, किसकी बात कर रहे हो? उसने बगैर लब हिलाए जवाब दिया, अनजान बन रही हो? देखता हूँ कब तक अनजान बनी रहोगी। कहने वाले ने गुस्से से कहा। इसकी दिमाग में एक फिनकार सी गूंजी। उसने जवाब में कुछ कहा, लेकिन इसके दिमाग में धुआं सा भरने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो नर्म मुलायम रुई के ढेर में धंसती चली जा रही हो। कुछ देर के बाद वो अपने आप से बेखबर हो गई। सुबह हर बेमामूल वो देर तक सोती रही। सितारा इसके जागने का इंतजार करती रही। जब वो 10 बजे तक भी न जागी तो उसने हैंडल पर हाथ रखा, दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गई। जब से आरजू की तबीयत खराब होने लगी थी, तब से कमाल राय ने उसे सख्ती से दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सोने से मना कर दिया था। याद न रहने की वजह से अगर वो गलती से दरवाज़ा लॉक करके सो जाती तो कमाल राय ने इसके कमरे की चाबी बनवा कर अपने पास रख छोड़ी थी। सितारा कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहले एक अजीब सी खुशबू से उसका वास्ता पड़ा। खुशबू ज़्यादा तेज न थी। फिर जब उसकी नज़रें आरजू पर गई तो उसने देखा कि वो एक काली चादर ओढ़े सो रही है। मुंह खुला हुआ था, बाल भी बंधे हुए न थे। इसका चेहरा दर्द हो रहा था। सितारा ने झुककर आहिस्ता से कहा, बीबी उठें, 10 बज रहे हैं। आरजू की नींद गहरी थी। वो इतनी हल्की आवाज पे जरा से भी ना हिली। तब सितारा ने झुके झुके इसका बाजू पकड़कर हिलाने का सोचा।
उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि कोई चीज सरसराती हुई बड़ी तेजी से इसकी गर्दन के पास से निकली और चेहरे पर आई। फिर उसने पलटकर देखा और उसके मुंह से तेज फनकार निकली। वो एक सुनहरा सांप था जिसका फन फैला हुआ था और 2 हिस्सों में तकसीम जुबान बार बार अंदर बाहर हो रही थी। इस सांप को देखकर सितारा की तो जान निकल गई। चंद में सेकंड तो वो यूं ही गुमसुम खड़ी रही। फिर एकदम उसके जिस्म में हरकत हुई और वो उल्टे कदमों चीखती हुई कमरे से बाहर आई। सरवरी उसकी तलाश में इधर ही आ रही थी। वो बाहर बड़ी जोर से उससे टकराई। उसे बौखलाया हुआ देखकर सरवरी ने उसे डांटा, क्या मुसीबत है, क्यों भाग रही हो? सितारा बामुश्किल बोली, अम्मा सांप। अरे बेवकूफ होश कर, कहाँ है सांप? सरवरी ने राहदारी में इधर उधर देखते हुए कहा, वो बीबी के बेड पर बीबी से लिपटा हुआ है, सितारा ने घबरा कर बताया। और बीबी क्या कर रही हैं? सरवरी ने पूछा। सो रही हैं, जाने बेहोश हैं। चल मेरे साथ आ। सरवरी कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। सितारा उसके पीछे पीछे चली। सरवरी एक निडर औरत थी। एक जमाने में वो दोनों मियाँ बीवी इतने बड़े बंगले में अकेले ही रहते थे। सरवरी को कभी कोई खौफ महसूस नहीं होता था। अलबत्ता उसका शौहर दिलदार जरूर डरता था, कुत्ते को देखकर जैसे उसके जिस्म में से जान निकल जाती थी। सरवरी निडर औरत थी, लेकिन ऐसी निडर भी ना थी ऐसी निडर भी ना थी कि सांप का जिक्र सुनकर वो आरजू के सराहने ही जा खड़ी होती और सांप का करीब से जायजा लेने का कोशिश करती। दरवाजे में 2 कदम बढ़ाकर वो फौरन ही रुक गई ताकि दूर से सामने का जायजा ले सके। अभी सरवरी कुछ देख भी नहीं पाई थी कि सितारा जो उसके पीछे थी, इसने उसके कांधे से झांक कर देखा और हैरान रह गई। बेड पर इस वक्त आरजू बेसुध लेटी हुई थी। चंद लम्हों पहले वो एक काली चादर से ढांपी हुई थी और एक सांप उसके चेहरे पर पन फैलाए बैठा था, लेकिन अब वहां काली चादर थी और ना ही सांप। आरजू का शव ख्वाबी का लिबास बैठ के एक तरफ पड़ा हुआ था और आरजू को अपनी हालत की खबर न थी। सितारा ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और सरवरी ने शव ख्वाबी के लिबास से आरजू को ढांपा। फिर सरवरी ने चारों तरफ से कमरे में देखा और उसे कहीं सांप नजर न आया। सितारा ने भी इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। सितारा को हैरत थी। चंद लम्हों में काली चादर और सांप कहाँ और कैसे गायब हो गए। सरवरी ने आरजू का चेहरा बगौर देखा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। वो गहरी सांसें लेती हुई गहरी नींद में थी। सरवरी ने उसका बाजू पकड़कर हिलाया, बीबी बीबी। अचानक आरजू ने आंखें खोल दी। पहले उसे उन दोनों को खाली खाली निगाहों से देखा, फिर एकदम झटके से उठकर बैठ गई। तब उसे एहसास हुआ उसने शब ख्वाबी का लिबास पहना हुआ नहीं है। ये जानकर वो और परेशान हो गई। सितारा ने जल्दी से अलमारी से एक चादर निकालकर उस पर डाल दी और बोली, बीबी आप वाशरूम में चली जाए। आरजू ने वाशरूम में जाकर चादर उतारी तो उसके नजर अपने पेट पर पड़ी। वहां 2 नन्हे गड्ढों का और इजाफा हो चुका था। उसे सख्त कमजोरी महसूस हो रही थी। उसने कपड़े तब्दील करके मुंह धोया। इसका चेहरा गर्म हो रहा था। यूं महसूस हो रहा था जैसे आग के सामने से उठकर आई हो। कई मर्तबा मुंह पर पानी के छपाके मारने के बाद वो वाशरूम से निकल आई। उसे चक्कर आ रहे थे और मतली किसी कैफियत हो रही थी। वाशरूम के दरवाजे पर सितारा खड़ी थी। आरजू डोलने लगी तो उसने थाम लिया और सहारा देकर बेड तक ले आई। आरजू निढाल होकर बेड पर गिर गई। बीबी लीमू का पानी पिएंगी? सितारा ने पूछा। हाँ सितारा, लाओ। कहाँ है सितारा? वो बेताबी से बोली। सितारा ने साइड टेबल पर रखा हुआ गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। ये ले बीबी, मैं अभी बनाकर लाई हूँ। आरजू ने तशक्कुर आमेज नजरों से सितारा को देखा और गिलास उसके हाथों से लेकर लीमू का पानी घटाघट पी गई। पानी पीने के बाद उसकी हालत कुछ बेहतर हुई। उसने आंखें खोल दी और तकियों से टेक लगाकर बैठ गई। सितारा ने इसके पांव अपनी गोद में रख लिए और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। बीबी, ये आपको क्या होता जा रहा है? वो बड़ी फिक्रमंदी से बोली। पता नहीं। आरजू क्या जवाब देती। बीबी, आज जब मैं आपको उठाने के लिए कमरे में आई तो मैंने आपको एक काली चादर में पाया। काली चादर? आरजू हैरान हुई। काली चादर कहाँ से आ गई? आप एक काली चादर ओढ़े हुई थी और चादर के अंदर सांप था। जब वो सांप चादर से बाहर आया तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं चीखती हुई बाहर भागी। बाहर अम्मा मिल गई। उनके साथ वापस आई तो यह काली चादर थी और ना ही सांप। इस जिक्र पर सितारा के हाथ और पांव फूलने लगे। बीबी, ये सब क्या है? मैं क्या बताऊं सितारा?
आरज़ू ने उलझे हुए लहजे में कहा, बीबी किसी मौलवी को दिखाएं, आप पर कोई साया तो नहीं हो गया? आप इतनी खूबसूरत जो हैं। सितारा ने अपने जहन के मुताबिक सूरत हाल का तजिया किया। सितारा, तू शायद ठीक कहती है। आरज़ू ने पुरख्याल अंदाज में कहा, मेरी खूबसूरती शायद मेरे लिए मुसीबत बन गई है। ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो जी का जंजाल हो जाए। अल्लाह मालिक है बीबी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सितारा ने उसे तसल्ली दी। इसी वक्त आरज़ू के दिमाग में किसी सांप की फनकार गूंजी।